Okay, students, any doubts from the fourth, fifth, and sixth? All students? Or shall we go for sixth one? You used out straight away. Anyone has doubt from 4, 5, 6? Page number 99. If nobody, then we'll go directly for sixth. Aisha, you have any doubts, Aisha? कुछ पूछना है? Page number 99, 4, 5, and 6. I'm doing the sixth one. Okay, no reply. Please, students, let's go for sixth one. Okay. So it's given to that position x of a particle moving in a straight line is related to time. So x is a function of time, and x is given as students 180 t plus 50 t square students. पूछा है find the initial velocity of the particle. Find the initial velocity of the particle. Initial velocity of the particle. D पूछा है acceleration of the particle. And C पूछा है velocity of the particle after time 4 seconds. Yes, any of the students who wants to try it out? X is equal to 180 t plus 50 t square. Find out the initial velocity we consider. Initial velocity, that means what exactly consider? Students? Anyone? T equal to 0. Okay, you want to try it out? You want to try it out? Or shall I Yes, do it? sir. Okay, बोलो तो कैसे करोगे? What you said is absolutely correct. Sir, we will differentiate x. Initial velocity का मतलब at time instant, at instant t equal to 0 second. ये ध्यान में रखना, तो ही तुम्हें आगे क्रैक होगा. Okay, मुझे बताओ वेलोसिटी कैसे मिलेगा यहाँ पे? क्या By करोगे? differentiating x. डिफरेंशिएट करोगे तो v is equal to what? dx by dt, है ना? तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग 180 plus 100t. हाँ, so 180t, यानी कैन आई से दिस विल बी 180 only, कांस्टेंट टर्म्स विल बी आउटसाइड, प्लस ये क्या हो जाएगा? 100t. यस, 2t हो जाएगा. तो कैन आई से दिस इज 180 प्लस 100t होगा. लेकिन तुम्हें t को क्या डालना है? 0. So can I say what exactly the initial velocity? The 180 meter per second. 180 मीटर पर सेकेंड. ये टाइम को हमने क्या डाल दिया है? 0. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सेकंड पार्ट पूछा गया है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? Sir, we'll again differentiate the velocity equation. 100 meter per second. Absolutely correct. Even Prithvi is also posting answer. सर वो स्क्वायर नहीं डाला मैंने बाय मिस्टेक, इसलिए मैंने बोला. ओके. करना था ना तुम्हें, क्यों नहीं किया? Even see, Prithvi is also, yes Prithvi, why not? You can. सर मैंने वो सम कल ही सॉल्व किए थे और मेरे को आदत मतलब मोस्टली सारे नहीं आए क्योंकि कुछ प्रोजेक्टाइल भी थे ना, और मेरे को प्रोजेक्टाइल में बहुत दिक्कत है. नहीं, लेकिन वन थिंग, तुमने मॉड्यूल के सारे एक चैप्टर्स के क्वेश्चंस किए हैं और एक्सरसाइज 1 किया है. सर आई एम डूइंग दैट साइमल्टेनियसली. ओके, तो पॉसिबल होगा माय डियर. तो तुम्हें पॉसिबिलिटी आराम से होगी वृद्धि.
अगर तुम पहले उसको कंप्लीट करो then you go for something else. Don't just try to change one book to the other. First तुम्हारे जितने भी अगर हो सके स्टूडेंट्स कभी भी ट्राई करना ना स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली और एंड it's your approach how do you go with respect to physics. कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना है स्टूडेंट्स so one thing you have to look into it. Yes, you need to go for proper theoretical concept in that case which is given in our module. अगर तुम चाहो तो HCV को रेफर कर सकते हो with respect to theory part of it to a great extent. अगर उसको भी तुम क्रैक नहीं कर सकते हो तो you can go for SLR, that is your NCERT book, not textbook, a reference book. वहां पे तुम्हें पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है कंसेप्ट प्रॉब्लम्स explanation concept problems just like that. Try to gain confidence over there first, then you try to jump onto the module part of it जहाँ पे तुम इन chapters के सारे questions try करो as well as solve and unsolve के बारे में. Try to do that part of it. उसके बाद में तुम HCV का objective 1 करो सर. Try to go for that. Then you come back to only first exercise of a module. काफी है, बहुत है. उतना भी कर लोगे तो भी काफी है. जितना तुम्हें आता है उतना तुम try करो. Then you go for HCV का second exercise, objective 2. You will be able to crack it. See, one thing what is happening, students when they're solving a particular chapter in physics, they try to go for it and directly they jump onto the exercise. Without going through the basics, without going through the certain good problems which are there in the in chapter, they don't touch them and they straight away go for the exercise. Just going on to the concept and problem. That is creating a problem for you. तो तुम क्या करते हो जैसे तुम मॉड्यूल के ऊपर एक्सरसाइज के ऊपर चले जाते हो तो वहां पे क्रैक नहीं होता है फिर तुम सोचते हो कि चलो मैं HCV से करना बैठो HCV में ऑब्जेक्टिव वन सबको आएगा ऑब्जेक्टिव वन इज मच मोर इजी वृद्धि ऑब्जेक्टिव वन किया है ना देयर आर 2 एक्सरसाइजेस यस सर। तो वो तुम्हें पहला वाला एक्सरसाइज इजी लगेगा क्योंकि पहला वाला बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप है थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछा है सेकंड के अंदर कुछ क्वेश्चंस तुम करोगे लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो वहां पे यू विल बी ब्लॉक्ड इन दैट केस आर यू गेटिंग इट यस ओके now how do you go about with this acceleration के लिए what exactly you said it's a differentiate velocity so velocity का expression क्या दिया sir velocity is given by 180 plus 100t so acceleration is equal to what clear what exactly constant 100 terms meter per second square. yes so ये क्या होगा सिर्फ 100 meter per second square now find out velocity after 4 seconds तो इसके लिए क्या करोगे हाँ स्टूडेंट्स velocity after 4 seconds क्या करोगे anybody We will substitute time for Right? 580 मीटर पर सेकंड। absolutely कौन से expression में तुम करोगे 180 plus 100t. 80 plus 100 Speed equal yes velocity is equal to how much you got it as 180 plus 100t can I say 180 plus 100 into 4 what's my answer 580 580. क्या ये clear हुआ students Yes, sir. you clear yes, sir. okay, क्या मैं इसको Thank you, erase कर sir. सकता हूँ? Can I erase it students Yes, sir. okay okay
Students, just try to solve this question. Okay, a question I wanted to solve it graphically. Okay, the answer is no, students. The question is, a car starts moving rectilinearly. So car is moving linearly. That means along a straight path. First with an acceleration. First with an acceleration alpha, which is 5 meter per second square. Initial velocity of the car is given to you as 0 meter per second, students. Acceleration is 5 meter per second square. उसके बाद में क्या आता है? This is first. It's working with an acceleration of 5 meter per second square. Then the car undergoes uniform motion. Okay. Then moves uniformly. And finally, listen carefully, students. And finally, decelerates at same rate. At same rate alpha. Finally, comes to rest. क्या ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. कार कैसे जा रही है? First linearly. Initially it was at rest. It going linearly. Firstly, the car undergoes an acceleration alpha 5 meter per second square. Then it goes with uniforms. Motion is uniform. Then finally it decelerates with the same rate, and it is brought to rest. क्या इतना clear हुआ? Now, students? Yes, sir. Yes, sir. Who said it? No, sir. Is it clear, students? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, the answer is now. The total time of the motion is given to you, students. Total time of journey. Total time of journey is given to you as 25 seconds. The average velocity during that time is equal to 72 kilometers per hour. Average velocity at that time is 72 kilometers per hour, students. 72 kilometers per hour, that's the average velocity. Okay, the average velocity during this time, ये time के लिए, students, is 72 kilometers per hour. Question पूछा गया है, how long does car moves uniformly? How long does car moves uniformly? यानी स्टूडेंट्स तुम्हें क्या पूछा गया है? मैंने बोला how long does the car moves uniformly? What exactly that means? Anybody? Time. Distance. Time. Yeah. Time taken for it to move uniformly. क्या ये clear हुआ, students? Yes, sir. Yes, अभी sir. स्टूडेंट्स अभी ध्यान से सुनना, इसी को अगर समझना हो तो हाउ डू गो अबाउट? प्लीज पे अटेंशन. सोचो कि ये रोड सरफेस है स्टूडेंट्स. तुम्हारा कार पहले यहाँ पे था, पॉइंट ए पे था. तुम्हारा इनिशियल स्पीड 0 था. एग्रीड. फिर मोशन क्या हुआ? एक्सेलरेट हुआ. तो u was 0, बॉडी अटेंड फाइनल वेलोसिटी. तो उसको एक एक्सेलरेशन मिला जो अल्फा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना? यानी तुम्हें एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा. उसके बाद में क्या जा रहा है? इट्स गोइंग यूनिफॉर्मली. You should not know what exactly uniformly means. हाँ, ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्मली जा रहा है. उसके बाद में क्या होगा? ब्रेक्स माइट बी अप्लाइड. यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाई किया है तो मोशन क्या हुआ? रिटार्ड.
retarding हो गया. Retardation is also with alpha, that is acceleration negative, and then finally it stops. यहां से जब ये शुरू किया और यहां तक आए तो टोटल टाइम कितना लिया? 25 seconds. Agreed? Yes, sir. And what exactly the average velocity for the whole motion we consider? The average velocity for the total motion is going to be how much? 72 72. kilometer per hour. पूछा गया what is the time taken? What is the time taken for this part of the journey? Agreed, students? Yes, sir. Now can you solve anyone? कोई solve कर सकता है इसको? And please to stress onto the word same rate. Yes, anyone? Yes, can I do it for you all students? Huh? Students, shall I solve it for you all? Rudy says yes, sir. Please solve. You says yes, sir. Students, ये देखो ना. See one thing, students. I know. Hope the question is clear. सबसे पहले अगर question clear होगा तो तुम्हें आराम से आ जाएगा. अब ध्यान से सुनो, students. Let me put forward a simple representation with respect to graph. ध्यान से सुनो, students. अगर मैं इसको graphically दिखाऊं भी students, so how exactly? Trapezium. Okay. ये देखो. I'll consider the motion of the body. Okay. Your horizontal x-axis, students, और ये vertical y-axis होगा तुम्हारा. Students, hope the screen is clear, students. Is the screen clear to all of you all? Audio video is fine? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. अभी हम इसी को प्लॉट करते हैं ग्राफ. सबसे पहले ये बताओ स्टूडेंट्स, मोशन लीनियर है and the body is undergoing an acceleration, students.
Okay, alpha we consider, and that means it's positive for some time. मैंने क्या बोला? It's first accelerate with alpha और देखो finally decelerates at same rate. उसका मतलब पहले कार का स्पीड 0 है, फिर वो एक्सेलरेट होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो अल्फा है। तो मुझे कौन सा ग्राफ चाहिए? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो ये हुआ तुम्हारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये अल्फा होगा। आई एन आर स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये होगा कुछ टाइम के लिए, ये होगा कुछ टाइम के लिए, गाड़ी को एक्सेलरेशन मिल रही है। उसके बाद में क्या जा रहा है? गाड़ी यूनिफॉर्मली जा रही है। यूनिफॉर्मली का मतलब इट्स गोइंग विद कांस्टेंट Straight स्पीड, straight line. स्ट्रेट लाइन होगा। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है? फाइनली डेसिलेट्स एट सेम रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम रेट का मतलब क्या? एग्जैक्टली जितने टाइम में वो एक्सेलरेट कर रहा था उसी टाइम में वो डेसिलेट भी कर रहा है। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं ग्राफ को फॉलो करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी अल्फा चाहिए लेकिन वो नेगेटिव में है, ये मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव में है और ये मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है और ये मेरा एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ पे भी जो टाइम है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी जो टाइम और यहाँ पे टाइम सेम है। लेट अस से दैट द टाइम टेकन ओवर हियर इज t, दिस इज आल्सो t। लेकिन उन्होंने बोला टोटल टाइम फॉर द जर्नी इज हाउ मच? 25 seconds। आई एन आर स्टूडेंट्स, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पूछा गया है, find out the time taken for this when the body is moving with uniform acceleration। तो ये टाइम क्या होगा स्टूडेंट्स? सर ये हो जाएगा 25 minus 2t। यानी किसी भी हाल में तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? माय फाइनल आंसर शुड बी 25 minus 2t in second। यानी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? t की वैल्यू फाइंड करके सब्स्टिट्यूट करना है। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस सर। बस अभी पूछना शुरू करो। अभी भी हेल्प चाहिए मेरी? Sir. हाँ पीयू, अभी तू कुछ ऐसा पूछेगी, ये पूरा सोल्यूशन पूछ लेगी तू, है ना? Sir. Sir, from where did Okay. 2T came? क्या बोल रहे हो? Sir, 2T कहाँ से आया? टू टूटी 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 टी प्लस टी टूटी। अच्छा, okay, sorry. ये Okay. हो नॉनिकल। स्टूडेंट्स अभी अभी देखो, अभी अभी तुम्हें सिर्फ किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है? देखो जितना जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना स्टूडेंट्स फिजिक्स के अंदर, हर एक स्टेटमेंट्स का कहाँ ना कहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा है। देखो मैंने पहले स्टेटमेंट के हिसाब से कार मूविंग लीनियरली, आई गेटिंग इट? तो मेरा मेरा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म पर आया तो यूनिफॉर्म मोशन के हिसाब से होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आने वाला है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा। दूसरा एक्सेलरेशन का, हाँ सर वो भी कंसेप्ट डाल दिया आपने, यूनिफॉर्म वो भी डाल दिया आपने, सेम रेट वो भी आ गया। यानी हर एक चीज को तुम्हें अच्छी तरह से कैटेगराइज करना है प्रॉब्लम का। टोटल टाइम आया, अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी उन्होंने क्या बोला है? एवरेज वेलोसिटी एट दैट टाइम। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ एवरेज? एवरेज वेलोसिटी, हाउ इज एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज? Total displacement by total time. वेरी गुड। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मुझे बताओ टोटल टाइम तुम्हें पता है? व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी? 25. 25 25. seconds. एवरेज वेलोसिटी कितना दिया है? 72 किलोमीटर पर आवर। क्या इसको तुम मीटर पर सेकंड में कर सकते हो? 20 meter per second. वेरी गुड। इंटू 5/18 ये करना जरूरी है, नहीं करोगे तो गलत चले जाओगे, है ना? तो ये कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड आएगा। तो क्या मैं इसको यहाँ पे 20 लिख दूं? Yes, sir. Yes, sir. टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर द जर्नी बताओ। Area under the graph. हाँ तो v टू टी ग्राफ क्या करोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए? भूल गए टोटल। Sir, half into Dhruti, sum of Dhruti, parallel sides. very good. Dhruti, you said area, na? Yes. Yes. And who else said about Veer? You said the formula also, isn't it? Yes, sir. Of course, students, देखो ना total displacement क्या होगा? Area under the graph. यानी ये पूरा area of this part of the geometrical shape बता चुका हूँ।
स्टूडेंट्स अगर तुम प्रोडक्ट निकालोगे, वेलोसिटी किसमें होती है? मीटर पर सेकंड। टाइम किसमें होता है? सेकंड। सेकंड सेकंड के साथ मीटर आ रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एरिया अंडर द ग्राफ। तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये तुम्हारा मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया स्टूडेंट्स। गेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो ये क्या है तुम्हारा? एक पैरेलल साइड कितना होगा? So the one of the parallel sides I'll consider will be equal to how much? 25 minus 2t. Agreed? ये देखो ना, ये parallel side Yes, sir. plus which is the other parallel side? 25. आया ना? Yes, sir. ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, half the sum of parallel sides, यानी ये distance, तो ये distance तो ये है, ये parallel side क्या होगा? है ये है, into height. What is height? Velocity. What is velocity? ये height हुआ कि नहीं? हाँ Yes, स्टूडेंट्स, sir. ये height हुआ कि नहीं ट्रेपीजियम का? half the sum of parallel sides. Suppose इसको मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट्स, this is O A B C. तो स्टूडेंट्स can you tell me which are the parallel sides? We'll say sir AB plus OC. अभी इजी हो गया। AB क्या है? 25 minus 2t, क्योंकि ये रेक्टेंगल आ गया। What is OC? 25, वो डाल दिया। half sum of parallel sides into height. What is height? Height is given to us 20. पीछे नहीं दिखेगा इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 20. Now can you solve this and get the answer for T? Students, can you solve this now? Yes, Yes, sir. sir. जो T तुम्हें यहाँ पे मिलेगा वो तुम क्या करोगे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। समझ में आ रहा है? And can you get your final answer now? Yes, sir. Yes, sir. Solve it. Solve it and get me the answer. Students, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स सबको? हाँ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. Still there are 15 students who are absent. I'm feeling sorry for them. If I'm moving ahead, उनका नुकसान हो रहा है। What is the value of T and what is the value of final answer? Can students still get the answer?
What's the value of t? ये तो करनी 20 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स. ये 25 to 50 इस तरफ आ जाएगा. Half the sum of parallel sides into height. Students, are you getting it? Time. अब आंसर देखना स्टूडेंट्स. अगर मुझे टाइम को करेक्ट आंसर चाहिए ना, तो मैं 20 अगर नहीं भी लूँ ना तो भी आंसर मिलेगा. इंस्टेड ऑफ टेकिंग 20 स्टूडेंट्स, कैन आई टेक 5t ओवर हियर? तो मेरा सब्जेक्ट ही t बन जाएगा. नाउ सी विल बी एबल टू गेट इट. स्टूडेंट्स, अगर मैं हाइट को 5t लेता हूँ, विल आई गेट माय आंसर? हाँ स्टूडेंट्स. सर यस. सर आपने 5t क्यों लिया? Yes, sir. Now, if in case if I happen to consider what exactly your average velocity we consider as equal to total displacement upon total time. Are you getting it? यस सर. अब ये देखो टाइम टेकन, तुम्हें ये नहीं पता ना यहाँ से यहाँ पे कितना टाइम है, और ये तुम्हारा अल्फा कितना दिया है? 5 दिया है. एग्रीड. अल्फा इज पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इज दिस क्लियर? ध्यान से सुनो. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ये क्लियर है? ये यस क्लियर है? अभी ध्यान से सुनना. मैं 20 लिखूंगा लेकिन मुझे क्रैक नहीं हो रहा है, इसलिए तुम लोग यू आर ट्राइंग टू स्टॉप इन बिटवीन, यू आर नॉट एबल टू गेट इट. बट नाउ इफ आई गेट माय सब्जेक्ट इन d, I'll be able to solve it. A is equal to v by t. What is the acceleration for reaching at maximum? Sir, acceleration is 5. So what is velocity? क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. क्योंकि तुम एक्सेलरेटेड लो या डेसिलेटेड लो, तुम्हारा अल्फा दोनों केस में सेम ही है. एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है. तो instead of 20 can I put 5t in this case? Is that clear? यस सर. Now solve Yes, with sir. 5t. Now solve with 5t. You'll be able to get the answer very easy. अब इसको solve करो and find out the time. क्या ये clear हुआ students? All the students inside the group? Everyone. Kushali has got the answer. Kushali, no my dear, it's incorrect. Anita, is it clear to you? Yes, sir. Okay. Vruddhi, is it clear, Vruddhi? Yes, sir. Okay. Kushali, इसको अच्छी तरह से solve करो. You'll be getting the answer properly. Yes, sir.
Yes, anybody? What answer you're getting it for T? Shall I solve it for you all, students? T का can I solve it for you all? हाँ, क्या बोल रहे हो? Sir, I got two values of t. Absolutely, you'll get a quadratic equation. क्या मिला तुम्हें T की value? 20 and 5. Of course, you'll get it as one value we consider as how much? 20. 20 नहीं होगा, 25 होगा my dear. हाँ, sorry, 20. हाँ, एक value 20 है, लेकिन 20 possible होगा? If I substitute 20, will I get the condition correct? ठीक है, अगर मैं यही 20 ले लूँ, हेलो, ये 20 ले लूँ, ये 20 ले लूँ, तो total तो 40 हो गया. और मुझे total कितना दिया है? 25 seconds. Not तो possible. 20 should be discarded. तो बचा क्या? T equal to 5 seconds. Yes. So what's your answer for this? Students, अभी तुम solve करोगे इसको, तुम्हें quadratic equation मिलेगा, लेकिन तुम्हारा final answer T कितना होगा? 5 seconds. Substitute this 5 back over here. 5 2s are 10. 25 minus 10, my final answer will be 15 seconds. Students, when you're solving this, you'll be getting a quadratic equation. You'll get two values. The greater value of time, 20 seconds, if I try to substitute it over here, it will not fulfill my condition because the total time itself for the journey is given as 25 seconds. So 20 seconds is absurd. Usko neglect karna hai. Bacha 5 seconds. 5 seconds को यहाँ पे substitute करो, your answer is 15 seconds. You already cracked it. ये तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे थे? तुमने अगर सॉल्व किया तो? Sir, I was not sure. Okay, fine. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ students? Can I erase it? Students? Yes, sir. Okay. Now students, everybody have a look on page number 113. Page number 113. Right now I want to solve questions from 7 to 11. All questions, students. Page number 113, question number 7 to question number 11. Okay. Page number 113. Since question number 7. I want to solve question number 7, 8, and 9 first. So it's a 100-meter sprinter increases his speed from rest uniformly at the rate of 1 meter per second square up to 3/4 of the total run and covers the last quarter with uniform speed. How much time it takes to cover the first half and the second half of the run? Anybody? First half and the second half of the run, students. And now, students, you should be able to crack all these questions without my help and try to solve it as fast as possible.
I'll just give you the hints in that case. Students, a 100-meter sprinter increases speed from rest uniformly. So let us say the motion is from A. It starts from rest. Okay. And it moves uniformly at a rate of 1 meter per second square up to 3/4. Total distance is 100 meter. तो कोई भी स्टूडेंट्स जो वाइज होगा वो बोलेगा 3/4 का मतलब क्या 75 मीटर. ये आना जरूरी है. 3/4 3/4 ऑफ 100. समझ में आ रहा है? यानी 75 मीटर्स उसने क्या एक्सेलरेशन से कहा, कौन सा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर 1. सेकंड. ओके. ऑफ द टोटल रन एंड कवर्स द लास्ट क्वार्टर. यानी 3/4 यानी शायद वो पॉइंट यहाँ पे होगा 3/4. ये पॉइंट यहाँ पे आया, ये 1/4 हुआ. तो 1/4 यानी कितना डिस्टेंस हुआ 25 मीटर. टोटल कितना हुआ 100 मीटर. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अभी देखो अभी इजी हो गया कि नहीं. एंड द लास्ट क्वार्टर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. यानी लास्ट क्वार्टर विद अ कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा 0. यहाँ पे मोशन इज एक्सेलरेटेड. यानी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, योर फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल. को समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक का मोशन में फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल. यानी u 0 है. यहाँ पे जो v आएगा वो v कांस्टेंट है थ्रू आउट. क्या ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? Yes, sir. पूछा गया है हाउ मच टाइम इज टेकन टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ. अभी देखो क्वेश्चन टोटली हटके है. नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड इज टाइम टेकन. ध्यान से सुनना. पूछा है हाउ मच टाइम इज टेकन टू कवर the first half and the second half of the run. Students, first half and the second half of the run. First half and second half. I want to find out that part of it. Are you getting it? So now find out the time taken for that kind of run. Solve and get me the answer accordingly. Let's see who's a good one. Let us say the time taken in the first case be T1. Time taken in the second case be T2. ध्यान से सुनो. लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? लास्ट स्टेटमेंट क्या पूछा है? हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कवर द फर्स्ट हाफ. फर्स्ट हाफ का मतलब कोई पॉइंट x लिया है जो ये होगा और ये चाहिए. यानी मुझे टाइम चाहिए फॉर 50 मीटर्स एंड टाइम चाहिए फॉर नेक्स्ट 50 मीटर्स. कुछ समझ में आ रहा है? ना कि T1 T2 प्लीज. ना कि T1 T2. T1 is a time taken for 3/4 of the distance. T2 is a time taken for 25 मीटर. मुझे वो नहीं पूछा. मुझे पूछा है टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट हाफ. टोटल डिस्टेंस इज 100 मीटर. फर्स्ट हाफ का मतलब 50 मीटर्स. उसके लिए टाइम चाहिए और इसके लिए टाइम चाहिए. थोड़ा सा वाइज हो, थोड़ा सा सोचो, क्लिक होगा. लेट्स सी हु इज अ गुड वन नाउ. थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा स्टूडेंट्स. कैलकुलेशंस होंगे यहाँ पे.
क्या मैं सॉल्व करूं स्टूडेंट्स? यू वांट मी टू सॉल्व इट? Sir, after 1 or 2 minutes. Okay. Rudy says no sir. You says दोनों एक जैसे है. You says 1 or 2 minutes. Okay, I'll give you 2 minutes. Okay, चलो. क्या मैं सॉल्व करूं स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स. एक मिनट. Shubh has got the first answer it seems. Yes Shubh, what about the second half? Sir, I am trying second. Very good. Anahita is also getting the first half correct. Very good Anahita. बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट. सामने डायग्राम इतना क्लियरली दे दिया मैंने. ये जो पॉइंट है ना स्टूडेंट, ये जो पॉइंट मिड पॉइंट वो यहाँ पे है, ये सोचो.
50 meters का. I want time taken for first half and time taken for the second half. T half. मेरे को अनायता को and Shubh got the answer. कैसे मिला? Can anybody tell me 10 seconds कैसे मिला other than these two students? हाँ, पीयू, वृद्धि. Sir, I got a wrong answer. वृद्धि यार फर्स्ट हाफ के लिए कितना चाहिए? तो तू यूज करना फॉर्मूला S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. फर्स्ट हाफ का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस कवर्ड कितना है? ये तो 50 मीटर पता है ना तुम्हें? आया ना? Yes. इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है कि नहीं है? Yes, sir. तो हाफ इंटू A इंटू टी स्क्वायर. ये टाइम कौन सा है? ये तुम्हारा टी हाफ, ये हाफ. ये टाइम तुम्हें पूछा गया यहाँ से यहाँ तक का, वो इन दोनों ने निकाल दिया तुरंत. और देखो ना कितना इजी है. और एक्सेलरेशन कितना होगा? तुम बोलोगे सर देखो, इसलिए मैंने बोला ये पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स. यानी तुम्हें A टू B के लिए एक्सेलरेशन कितना है? 1. तो A टू X के लिए भी एक्सेलरेशन कितना होगा? 1. 1. तो तो रॉकेट साइंस था ये. तो देखो ना 50 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर. तो टी स्क्वायर कितना होगा? 100. डिड आई गेट टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स नाउ? यानी टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट हाफ इज हाउ मच? 10 सेकेंड्स. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, सेकेंड हाफ के sir. लिए चाहिए स्टूडेंट. सेकेंड हाफ के लिए अगर चाहिए, सेकेंड हाफ के लिए चाहिए तो कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी वाइज होगा. ओ सर सेकेंड हाफ के लिए आप ऐसा करो, यहाँ से यहाँ का टाइम निकाल दो और यहाँ से यहाँ का टाइम निकाल दो और टोटल टाइम आप ले लो T1 प्लस T2. यानी अगर तुम्हें टोटल टाइम ऑफ द जर्नी मिल गया, उसमें से ये टाइम को सबट्रैक्ट कर दो तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ स्टूडेंट्स. तो सेकेंड हाफ के लिए यानी से टोटल टाइम माइनस 10 सेकेंड्स होगा. क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. क्या ये रॉकेट साइंस था? No, sir. अभी ये टी कैसे निकालोगे? ए मालूम है, यू मालूम है, एस मालूम है, टी पूछा है. S U A T S U S is A equals T. to U plus हाँ AT. हाँ हाँ, वाह रे वाह, वाह पीयू. अभी देखो, अभी कैसे ट्यूबलाइट हो रही है? अभी क्यों ट्यूबलाइट हो रही है स्टूडेंट्स? मैंने कुछ क्वेश्चन तुम्हें दिया होगा तो शायद मुझे फील होता है कि नहीं ये 10 में से एटलीस्ट मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू आंसर, लेकिन हार्डली 2 स्टूडेंट्स कुड क्रैक अप टिल हियर. व्हाई? Because you are not thinking properly in that case. Or and I'm getting much more angry onto these two students who have got 10 seconds. क्योंकि उनको जैसे ये मिला है तो यहाँ पे सोचना चाहिए था ना. देखो यहाँ पे तुम निकालो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. ये तुम इसको T1 ले लो. हाँ, ये अभी कैलकुलेशन होगा. कैलकुलेशन तुम्हारा ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है स्टूडेंट्स. इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है. S को 75 डाल दो, एक्सेलरेशन को 1 ले लो. T1 स्क्वायर मिलेगा कि नहीं? T1 का आंसर मिलेगा. हाँ स्टूडेंट्स, T1 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पे? एग्रीड? Yes, sir. अभी तुम्हें T2 कैसे निकालोगे यहाँ पे बताओ? एक्सेलरेटर 0, so you have to find out velocity at this instant. तो how do you find out velocity यहाँ पे? तो कौन सा फॉर्मूला होगा? V is equal to U plus A into T. जो T यहाँ पे मिला वो T तुम यहाँ पे डालो. देखो तुम्हें फाइनल वेलोसिटी मिलेगा एट पॉइंट B. U 0,
एक्सेलरेशन 1, T1 जो आंसर यहाँ पे मिलेगा ना वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना तो तुम्हें V मिलेगा. Now when you know V, students, are you getting it? It remains constant. So speed is equal to distance upon time. To find out time in the second case, क्या करोगे? Speed is equal to distance upon time. Find out T2, add both and then subtract 10. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Please समझ में आ रहा है students? Yes, sir. It seems that only one student is saying it yes. बाकी सारे वापस mentally block हो गए. Okay. तो सेकंड हाफ वापस समझना. हाँ Yes, second. sir. हाँ. अच्छा चलो अब हम T1 निकालते हैं. स्टूडेंट्स T1 का आंसर क्या है बताओ. T1 का आंसर क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर ये 75 ले लो. ओके U तो 0 है. हाफ इंटू 1 इंटू T1 स्क्वायर. तो सर T1 क्या होगा? 150 होगा स्क्वायर. तो T1 क्या होगा? हाँ स्टूडेंट्स 12.24. 5√6 सेकेंड. ये T1 मिला. ये T1 स्क्वायर है. क्या ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. √6 को तुम डालो ना वैल्यू यू कैन पुट इट एंड यू कैन गेट योर आंसर इन T1. अभी देखो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे लेते हैं. कैन यू फाइंड वेलोसिटी? यस. V इज ये समझ में आ रहा है. V इज U plus 80. The car is in motion. When it reaches at point B, it attains some velocity. After time 5√6 seconds. What is the final velocity at the end of 5√2 seconds? 5√6 seconds. So U plus A into 5√6. है ना? So what's the velocity over here? So the velocity will be equal to how much? Now, is this velocity constant from B to C? Yes. Yes, sir. That's why acceleration is 0. हाँ, Is the motion uniform? It's going with uniform speed. yes. Agreed? तो क्या यहाँ पे तुम काइनेमैटिक इक्वेशन यूज करोगे? नहीं. Speed, distance, time. Simple. Students, kinematic equations कहाँ पे use होता है? For accelerated motion. Either motion is accelerated or motion is decelerated. Students, V is equal to U plus 80. S is equal to U plus half 80 square. V square is equal to U square plus 2S. इन तीनों का heading क्या है? तुमने जब भी kinematics पढ़ा था तो इनका heading क्या है? Derive. ध्यान से सुनना. Derive 3 linear kinematic equation for a body moving with uniform acceleration along a straight line. Uniform acceleration का मतलब acceleration constant यानी velocity या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है. यानी motion accelerated हो रहा है या decelerate हो रहा है. Uniformly accelerate हो रहा है या uniform decelerate हो रहा है. लेकिन यहाँ पे acceleration तो 0 ही है. तो देखो what is the time taken in the second case? Distance in the second case कितना है? 25. How much is the speed? क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Clear हुआ? Yes, sir. Agree? इसको मैं solve करूँ तो कितने से 5/√6 seconds आ गया. तो ये तुम्हें T1 मिला. ये तुम्हें T2 मिला. What is capital T? T1 plus T2. दोनों को ऐड करो. टोटल टाइम होगा. यहां से यहां का टाइम तुम्हें मिला. यहां से यहाँ पे हाफ के लिए कितना टाइम मिला? 10 सेकेंड्स. तो इसके लिए क्या करोगे? ये जो आंसर होगा उसमें से इसको सबट्रैक्ट करो 10. समझ में आया अभी? स्टूडेंट्स अभी समझ में आया? सर Yes, जब sir. हमें हाफ डिस्टेंस का फाइंड आउट करना था तो फिर आपने फिर वो 75 करके क्यों किया? अरे तो Means मुझे we हाफ got the half time के for the लिए- half part. No. तो we got the time for the first half. Is the time taken for the second half remain same? No. क्यों नहीं सेम? बिकॉज स्टिल एट x the motion is getting accelerated. ये तो ना मैंने पॉइंट x इसलिए बताया यहाँ पे. जब भी कार यहाँ पे आ रही है तो क्या उसका स्पीड इसके बाद में कांस्टेंट हो रहा है या b से कांस्टेंट हो रहा है? B से.
तो इसका तो मोशन एक्सेलरेटेड हो रहा है, तो आई कांट जज माय आंसर। तो मेरे को इसी हिसाब से दोनों का टाइम निकालना जरूरी था, और ये टोटल टाइम को इसमें से सबट्रैक्ट करो फॉर द फर्स्ट हाफ, बाकी का जो बचा वो इसके लिए होगा। यानी यहां से यहाँ पे मोशन वापस एक्सेलरेट होगा, फिर यहां से तुम्हारे कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, तो वो टोटल टाइम तुम्हें मिलेगा सेकंड केस में। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ यू ऑल, नॉट 1 and 2। अभी अभी तुम्हारे कैलकुलेशंस, अभी तुम लोग सिर्फ Yes, sir. कैलकुलेशन कैसे करते हैं? हाँ बोलो, है ना? अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, प्लीज एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 2? 1.414, ये तो पढ़ा होगा 10th में। Yes, sir. Yes, sir. रूट 3 1.732, ये भी 10 में पढ़ा होगा बहुत सारा, सॉलिड Yes, ज्योमेट्री। Yes, sir. यानी ये तो सबको याद रहना चाहिए, अगर नहीं याद होगा तो यू कांट एंटर इनटू साइंस, शिफ्ट बैक इनटू योर स्कूल लेवल, लर्न सम बेटर मैथ्स एंड फिजिक्स एंड देन थिंक अबाउट साइंस। यानी रूट 2 रूट 3 आना जरूरी है। रूट 4 क्या है? 2। अभी ध्यान से देखना, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9, रूट Sir, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8. वेरी गुड। Who's this? ये मैंने बताया क्या तुमको कभी? Yes, sir. Okay, Sir, so during vectors. वेरी गुड। देखो उस टाइम पे मैंने बताया, उसको अभी तक याद है। ये चाहिए स्टूडेंट्स, मेंस और नीट की स्टडीज या एडवांस की स्टडीज के लिए तुम्हारी मेमोरी शार्प होनी जरूरी है। लेकिन मैंने एक डिजिट रख दिया है, देखो ना, ये तुरंत हो गया। 4 आ गया, ये 2.2 होगा, ये 2.4 होगा, ये 2.6 होगा, ये 2.8 होगा, ये 3 होगा, ये एक्चुअली 3.16 है, रूट 10, जिसको मैं 3.2 लिखूंगा। दिस थिंग्स यू शुड रिमेम्बर इट, ये बार बार कोई बोलता नहीं है। अभी देखो तुम्हें रूट 6 मिला, तो रूट 6 की वैल्यू कितनी होगी? रूट 6 इज 2.4। अभी यहाँ पे तुम्हें आंसर निकालना है, तो तुम कैसे करोगे? इसको रैशनलाइज करोगे, ये भी मैथ्स आना जरूरी है। यानी 5 रूट 6 अपॉन 6, तो 5 इंटू कितना करोगे? 2.4 डिवाइड बाई 6, सॉल्व करो, ये टोटल आंसर निकालो, उसमें से 10 सेकंड सबट्रैक्ट करो, आंसर मिलेगा फॉर द नेक्स्ट हाफ। दैट मींस द आंसर फॉर दिस विल बी गेटिंग इट एज हाउ मच, ना? इसके लिए तुम्हें क्या आंसर मिलेगा? टाइम, ये 10 सेकंड्स मिलेगा। दिस आंसर यू शुड गेट इट एज हाउ मच? 4.2. 4.24 सेकंड्स मिलेगा। Yes, sir. क्या ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, इरेज कर सकता हूँ मैं इसको अभी? Yes, sir. गो फॉर द नेक्स्ट वन नाउ। That's all the 8 parts, students. Come on. The number of students are now 50% से भी कम है. This is something wrong. And already I've moved ahead. Yes, anybody can give an answer for the 8th one, students? A motor car starts from rest and accelerates uniformly for 10 seconds. So acceleration is positive and attains a velocity of 20 meters per second. It then runs at a constant speed. And finally, it is brought to rest. The motion is thus decelerated in 40 meters with a constant retardation. Total distance covered is 640 meters, students.
find value of acceleration, retardation, and total time taken. Yes, anyone? Shall I solve it for you all students? Solve करूँ मैं? Sir, 2 minutes. Okay. Students will take this as the last problem, students. ये हम last problem because many students are not there in that case and the questions are good enough. नहीं तो वापस वो repeat करने के लिए बोलेंगे next time. Few 10 to 14 students who haven't entered only since beginning, and few students right now they have left. I don't know for what reason. Do you have a record of these students who have left right now? Almost 5 students have left. Sorry, 4 students have left. You have a record of them. I'm not Swayam going went. to enter inside. एक picture में उनको enter नहीं करने दूंगा मैं. You तो record में रखना ये कौन से 4 students है, because strength was 21 and total number of students were 35, 36 है. So almost 15 students are not present since beginning. और अभी वापस 4 students गए, जो 4 students, चलो 15 students गए, fine enough. Genuine हो सकता है कि चलो उनका हेमंत सर का था and it's like that. लेकिन मुझे टाइम टेबल में तुम्हारा दिया गया था. And this 4 students who have left it right now, if anybody knows it, who are these 4 students, next lecture में मुझे बताना students, okay? I'm not going to allow them to enter at all now. Anytime हेमंत सर का कैंसिल हो गया था हेमंत सर का, लेकिन मेरा रखा हुआ था. अच्छा, पीयू says one is स्वयं. पीयू अभी स्वयं को मैं आने नहीं दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. ओके पीयू? As your wish, sir. आज वो बेच नहीं, तुमने बोला नहीं आने देना. Sir, I just mentioned the name because I am not seeing his name right now in the participant list. That's it. It's up to you to decide. Okay. सॉल्व करो स्टूडेंट्स, बता दो ये कैसे करना है. शुभ तुम्हें आया? Sir, I got off 2, acceleration and retardation. वेरी गुड. एक्सेलरेशन कितना मिला? 2. Yes, sir. रिटार्डेशन कितना मिला? Meter per second. How many? 5. 5. -5. Retardation is 5. Acceleration is -5. Absolutely correct. स्टूडेंट्स ये रॉकेट साइंस नहीं है यार. अभी भी तुम क्यों नहीं समझ रहे हो यार? एक सीधा ग्राफ बना दो ना, फटाफट होता है ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा तुम्हारा. द मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकंड दिया है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. मोशन इज एक्सेलरेटेड, पॉजिटिव. एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन नेगेटिव. ये टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स. ये टाइम कितना लिया है? 4 सेकंड में वो ब्रॉट टू रेस्ट आ रहा है. ये टाइम पूछा गया है. पहले केस में कैसे करोगे स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v माइनस u अपॉन t. स्टूडेंट्स हाँ, वेलोसिटी तुम्हें दिया है ना, रीड Yes, करो. sir. 20 मीटर पर सेकंड एट द एंड ऑफ 10 सेकंड्स. एट द एंड ऑफ 10 सेकंड सी द वेलोसिटी.
तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल इज 0 इन हाउ मच टाइम, 10 सेकेंड्स। क्या हुआ, एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये रॉकेट साइंस था? No, इतना sir. सोच रहे हो? मत ना, इतना क्यों टाइम ले रहे हो स्टूडेंट्स? अभी तो यार ट्राई टू ओपन अप। अभी देखो सेकंड केस में क्या पूछा है, रिटार्डेशन का अगर मैं निकालूं स्टूडेंट्स तो कैसे होगा? सर इसके लिए भी सेम है, एक्सेलरेशन वही है, तो a इज इक्वल टू व्हाट, ये पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाउ मच आई नीड टू फाइंड आउट, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20, in how much time, 4, so what's our acceleration? So what is the So that retardation? 4 seconds, how you got? Because in question it's not there. What? So मुझे 10 seconds समझा, 4 seconds how you means said कि ऐसा 4 seconds होगा for the next one. इसके लिए either you take this, okay fine, I'll go for this equation, go for s is equal to ut plus half at square। चलो ना, ये भी मिल गया तुम्हें, acceleration निकालो, इसको भूल जाओ, चलो then we'll go for time। can I use this? displacement में भी है ना 40 meters, Yes sir. या So we तो can तुम also use v square is equals to u use square plus 2. u square plus 2s, शुभ ने ये यूज किया होगा। Yes, शुभ sir. ने use किया कि नहीं? तो इससे Yes, तुम्हें sir. इससे तुम्हें और जल्दी मिलेगा, v square is equal to u square plus 2as। अब इसको यूज करके कैन यू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन? व्हाई नॉट, ये 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 स्क्वायर प्लस 2 into acceleration is what I need to find out, displacement is 40, so what exactly my acceleration will be? Sir, -5 meter per second square। what exactly, अभी देखो तुम्हें acceleration मिला, तो can you find out time taken also? why not, I can get time taken, ये देखो तुम्हें 4 seconds ही मिलेगा यहाँ पे। how do you get time? so formula will be what, a is equal to v minus u upon t। so what is t? 0 minus what's the initial velocity, 20 upon acceleration is how much, 5। agreed, that is -5, so what's the Yes answer? sir, understood. Thank you. सेकंड आ गया। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes Yes, sir. sir. अभी क्या पूछा उन्होंने, दूसरा क्या पूछा स्टूडेंट्स? Total distance. Total टोटल डिस्टेंस के लिए क्या time. करोगे, जल्दी से बताओ, टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करोगे? देखो क्या किया मैंने, Area under the graph. हाँ अभी देखो क्यों तुरंत क्लिक हो रही है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, मतलब फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, Half into sum of the parallel side parallel into height. sides into height. yes, and what are the parallel sides? parallel sides में ये कितना है, how much is this? ये तुम्हें पूछा गया है ना? excuse me, so what exactly area under the graph, half the sum of parallel sides, sum of parallel sides यानी ये t तो आएगा ही, प्लस, क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, इनटू हाइट। what is this? so that is displacement, what is the total displacement given to you? देखो last statement में दिया है 640। now can you solve and get the time? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. देखो 2 10 एक 0 से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 64 is equal to 2t plus 14। so what exactly 2t will be equal to 64 minus 14, that will be equal to how much, 50, t is equal to how much, 25. 25. what is the total time now, अगर ये तुम्हें 25 seconds मिला, so what is the total time for the journey, 25 plus 10 35, 35 plus 4 39 seconds। क्या आंसर, क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Sir, वो हाँ, area of parallel sides, so you wrote half plus t plus 14 into 20 होगा ना? हाँ into 20 लेना, t plus 14 plus t into 20, मतलब और 2 plus times का मैंने, you have wrote t 2 times. हाँ तो of course ना,
half the sum of parallel sides. Students, ये देखना, ये और ये congruent है, ये तो t होगा ना, ये distance कितना है, t है ना, वैसे करना है. Okay, sir. Understood, sir. and ये पूरा कितना होगा, 10 plus t plus 4. Oh, हाँ. Okay, sir. वाह, क्या कर रही है पीयू, क्या कर रही है तो, ये है तेरा और ये है पैरेलल साइड्स, तो ये डिस्टेंस आना चाहिए और ये डिस्टेंस आना चाहिए. Yes, sir. Sorry, sir. Okay, students. So we'll wind up over here itself only. Next lecture will be continuing further. Okay. Thank you. Bye. See ya. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Bye-bye. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.